Good morning students, welcome to Genome classes. All the repeater students are requested to see this video as it is made on molecular basis of inheritance, and this molecular basis of inheritance is very important for NEET 2020 and AIMS. So we will start this molecular basis of inheritance. And all the key concepts of molecular basis of inheritance. In molecular or before molecular basis of inheritance, we know that chromosomal basis of inheritance was very important. And in chromosomal basis of inheritance, different structure, function of genes and chromosomes and pattern of inheritance we already studied. तेणु करी आज जोटा आम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस उपरे पढ़िबा को जाउचंती प्रथम फेज रे मु तार थ्योरी एनसीईआरटी रो थ्योरी को कवर करनेबी सेकंड फेज रे जेते भी क्वेश्चन संभव सब जांग ताकू कवर करनेबी निश्चित भाव रे 4 रु 5 टा क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे जहां भी आसीबो ताकू आम इजीली सॉल्व करि परिबा सो आमे जगह रे कंप्लीटली एनसीईआरटी रो कांसेप्ट को ध्यान दबा तेणु आम एनसीईआरटी रो कांसेप्ट अनुसार ही रिवीजन करेबा तेणु करी समस्त एनसीईआरटी बुक जदि पाखरे रखिचंती ताले आउरी बेटर हबो क्लास टा बुझिया पई बा एका संगे से मानकर सब जांक कवर हेका जिवो ताले मु प्रथम कहि नेबा को चाहूची जो माने भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर ऊपर जानिचंती बा जहां भी आईडिया अछंती वंस ए क्लास कला परे कोनोसी प्रकार कांसेप्ट को मन रखिबा को पड़िबो नाही जदि कंप्लीटली थरोले से माने सुनुचंती मो कथा को तले निहाती भाबरे प्रत्येक जिनिस आज क्लास रे ही ट्रिक टेक्निक्स रे मु मन रखेबी जेते प्रकार संभव हबो चेष्टा करिवि प्रत्येक कांसेप्ट को मु टच करिया पई सो वी विल स्टार्ट नोन एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ inheritance. Okay, according to NCERT in previous chapter or before molecular basis of inheritance we have studied chromosomal basis of inheritance, and inheritance means what? The process or the phenomenon by which offspring resembles to their parent, that is called as inheritance. Simply in Mendelian genetics we have already studied about chromosomal inheritance, that means how chromosomes are transferred from parent to offspring, how characters or elemental are transferred from parent to offspring, that is simply known as chromosomal basis of inheritance. But here we are studying about the molecular basis of inheritance, means what is the chemical composition or chemical characteristics of gene, what is the chemical composition of nucleic acid, what is the process of transmission of these substances from parent to offsprings, and which is known as genetic material, or which one is called as the carrier of genetic material. So let us start about the types or pattern of inheritance, or a question that is called as which structure or which substance is known as which structure is known as the genetic material, in different organism, which is known as the genetic material in different organism. This concept was not clarified during the course of Mendel को टाइम रे ए जो concept जे कहा को हमें genetic material कहबा completely clarification हेई पार नथिला due to lack of experiment or due to lack of different laboratory experiment or material, they could not understand the mechanism of genetic material, or which one is called as genetic material. डिफरेंट साइंटिस्ट माने भाविले कि कहला प्रोटीन में भी द जेनेटिक मटेरियल, को माने कहले डीएनए में भी द जेनेटिक मटेरियल, के कहले आरएनए में भी द जेनेटिक मटेरियल. सो गुडाई कंफ्यूजन क्रिएट हे गला. 100 ऑफ इयर्स ता पर रिसर्च चलला, ता परे जाई कि कंफर्म हेले जे ए जगह रे द डीएनए में भी द जेनेटिक मटेरियल,
परे जाइकरी कन्फर्मेशन होइचंती द डीएनए मे बी द जेनेटिक मटेरियल बट तमें माने जेहेतु आज आम पढ़िया जाऊँच कनसेप्ट उपरे आमको प्राइमरीली मन रखा पड़ो बा आमको जानिबा पड़ो जे आम जानी ना आमको जानिबा पड़ो जे आम जानी ना डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जदि यही लेवल रू आम स्टार्ट करवा ताहले पाठटा आउ टिके रोमांटिक लगे कहीं ना कदापि तुम भावनी तुम मैंने अलरेडी जानी दीच 2-4 वर्ष स्टडी रे जे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बट आमे क्लास स्टार्ट रे प्रथम मन रखा पड़े डीएनए आमे जानी ना जे डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल सो आमे से जीरो लेवल रे स्टार्ट कले ही आमे जाइकरी पहुंची परिबा व्हिच वन इज कॉल्ड एज द जेनेटिक मटेरियल ताहले अच्छा जेमिति आमे जानी चंती जे जिते बेले कांसेप्ट क्लैरिफाई हैला समस्ते कहिले द न्यूक्लिक एसिड इज नोन एज the genetic material बुझियला and that nucleic acid was actually discovered by scientist Frederick Mister inside the nucleus and due to its acidic property मु जहा कहू समस्त टिके मन रख टिके भल से ध्यान दियो जे मु कहूची due to a substance is discovered inside the nucleus of a cell and due to its acidic property the substance is called as the nucleic acid by Frederick Mister and that nucleic acid is known as the genetic material and according to NCERT the nucleic acid may be of two different types the number one is called as DNA and number two is called as the RNA जो डीएनए को आमे कहउचंती deoxyribonucleic acid the DNA is called as deoxyribonucleic acid and this RNA is simply called as ribonucleic acid तेणु एतिक दिन सब मन रखा पड़ो तेणुक मुझे जगह खाली केतोटा पॉइंट कही नौ समस्ते मन रख इन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए आमे समस्ते जानते मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मु एनसेट रो जो टर्म गुडा को बेसी फोकस करूची समस्त टिके मन रखिबो कारण नीट रे सेही टर्म ही बेसी पचारे मु कहूची द डीएनए इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आमे पर्यंत प्रूव करना तो व्हिच वन इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल बट तथापि मु कहूची द डीएनए इन केस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बट जेते बेले मु सेकंड न्यूक्लिक एसिड को भी जाउची दैट इज कॉल्ड एज आरएनए द आरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल क्यों जेते बेले मु कहबे आरएनए इज आल्सो कॉल्ड एज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ह्यूमन बट इन सम तले ए जगह मु लगेली टर्म मेजॉरिटी आरएनए पाखरे मु लगेई दउची इन सम सो इन केस ऑफ सम वायरस केवल हमें वायरस मानकर जदि एग्जांपल नउचंती इन केस ऑफ सम वायरस द आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल हमें टिके एनसीईआरटी रो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रो पेज को फर्स्ट पेज को बेसी ध्यान देबा जदि पेज नंबर जो मान पाखरे बुक अछि जदि से माने पेज नंबर को ध्यान देबे ताले फर्स्ट पेज हमर 95 पेज रे हमें देखि नबा पेज नंबर 95 समस्त टिके देखि नबो तादर से कहया को चाहूची ए जगह आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल नो डाउट ठीक अछि बट इन केस ऑफ सम वायरस से जगह एडिशनल केतरा पॉइंट देछि टिके देखो से एडिशनल पॉइंट रे हम जानि परिबा एक्सेप्ट जेनेटिक मटेरियल द आरएनए आल्सो फंक्शन्स एज अदर सब्सटेंसेस आरएनए रा आउ किछि अलगा फंक्शन मध्ये अछि ताले मु कहि परिबी आरएनए आउ कोन कोन फंक्शन क्रिएट करूची बा आउ कोन कोन फंक्शन शो करूची नंबर 1 पॉइंट जदि हमें वर्तमान आरएनए ऊपर देखिबा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ताले नंबर 1 मन रखिता एनसीईआरटी कहूची आरएनए आल्सो एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिस पॉइंट आरएनए आल्सो एक्ट एज द कैटालिटिक also act as the catalytic molecule this point number 1 second point se kahichi RNA act as the structural molecule and third point RNA act as messenger
तो नंबर 2 कौन है परिबो नंबर 1 मु कहले आरएनए एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल और इट शो द कैटालिटिक प्रॉपर्टी सेकंड वन भी मु कहली आरएनए एक्ट एज मैसेंजर नंबर 2 आरएनए आल्सो एक्ट एज मैसेंजर मॉलिक्यूल आउ कौन है परिबो ना आरएनए को मध्य हमें कहि परिबा गुटे अडैप्टर भलिया काम करि पारुची आरएनए एक्ट एज अडैप्टर एक्ट एज अडैप्टर मॉलिक्यूल समस्त टिके ध्यान दियो जोटा हमें लिखिचंती आरएनए एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल आरएनए एक्ट एज अडैप्टर मॉलिक्यूल एंड आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल आल्सो आरएनए एक्ट एज structural molecule also so ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ନଉଛି number 4 act as structural molecule तो आउ टिके हम ए जगह फोकस कर नबा आउट के हमें जगह फोकस करनवा नंबर 1 पॉइंट द आरएनए एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल नंबर 2 पॉइंट आरएनए एक्ट एज मैसेंजर मॉलिक्यूल नंबर 3 पॉइंट आरएनए एक्ट एज अडैप्टर मॉलिक्यूल एंड नंबर 4 आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल ताले टिके हमें एनसीईआरटी रे कोन डिफरेंस रहिला तम माने तो ई कथा जानितलो मु भी एग्जैक्टली सही कथा ही कहली बट ए जगह डिफरेंस कोन रहिला एग्जाम रे जतबेले क्वेश्चन आसीथिबो से जगह रे प्राइमरी क्वेश्चन जदि भी आरएनए ऊपर पचारला तले क्वेश्चन होउचे जगह हमें कोन करि परिबा ना क्वेश्चन इज नंबर 1 डिपेंडिंग अपॉन आरएनए क्वेश्चन इज द आरएनए act as dash among all the function ओके ताले मु कहि परिबी ये चारिटा फंक्शन तो हमें जानि चंती ताले आरएनए एक्ट एज डैश एमंग ऑल द फंक्शन ताले नंबर ए रे ऑप्शन मो पाखरे अछि मैसेंजर नंबर ए रे अछि मैसेंजर नंबर बी रे मु कहिबी कैटालिटिक नंबर सी स्ट्रक्चरल नंबर भी आईवी दैट इज अडैप्टर ओके ताले हम क्वेश्चन पचारछि द आरएनए एक्ट एज एमंग ऑल द डैश एमंग ऑल द फंक्शन ताले ए जगह मोर आंसर कोन हेई परिबो ना मोर आंसर हेई परिबो ताले आरएनए एक्ट एज मैसेंजर आरएनए एक्ट एज कैटालिटिक आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एक्ट एज अडैप्टर किंतु क्वेश्चन को मु चेंज करूछि कोन जदि मु ए जगह रे जोड़ी देली आरएनए एई पॉइंट रे देई देली प्राइमरी क्वेश्चन तो ऑल ऑफ दिस जगह मु करि परिबी सेकंड रे जदि क्वेश्चन को मु ट्विस्ट करूची द आरएनए एठी लिखि देबी मु एनसेट रे पचा देथबो मोस्टली एक्ट एज दैट इज वेरी 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 इंपोर्टेंट जदि मु पचाउची आरएनए मोस्टली एक्ट एज ताले कोन हे जिवो ताले तमे कहि परिबोनी जे जगह रे कैटालिटिक कहि परिबोनी अडैप्टर कहि परिबोनी स्ट्रक्चरल जदि 95 पेज को हमें एनसेट रे ध्यान देबा ताले से जगह रे कहिबो आरएनए मोस्टली एक्ट एज मैसेंजर मॉलिक्यूल तो दिस पॉइंट एनसेट रा हमर मेन पॉइंट पढिबार दिनस होछ एया जे सब दिनस तो अछि हमें ता दरु खोजिया को पड़िबो जे को दिनसटा वेरी इंपोर्टेंट सो आरएनए रा प्राइमरी फंक्शन सब दिनस होई परिबो बट द प्राइमरी बा द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन इट एक्ट एज द मैसेंजर मॉलिक्यूल जेतेबेले आरएनए टा मैसेंजर मॉलिक्यूल भलिया काम करे एट दैट टाइम वी कैन से दैट द आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ओके अच्छा सेकंड कांसेप्ट जेतेले हमें जाउचंती आरएनए वायरस मानकर जेनेटिक मटेरियल हे पारुची तापर नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द डीएनए एंड द डीएनए विषय भी हमें पढ़िबा डीएनए रो सबु जंक इन्फॉर्मेशन को भी हमें देखिबा ईच पॉइंट को देखिबा केमती डीएनए रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन होची ताकू भी हमें आउ टिके बेसी भलो भाबरे देखिबा ओके नेक्स्ट कांसेप्ट हमें जाउचंती द न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज नोन एज डीएनए जहा को अति गेलार हमें कहउचंती डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ
nucleic acid, and in DNA we know that if we will consider the phenomenon of genetic information, or that is called as central dogma. देख पिला माने जेहेतु सेंट्रल डगमा आगरे आमे पढ़िबा, बट ए जगह खाली जस्ट मु मन पकई दे पई एनसेट र पेज को मन रखिया पाही मते कांसेप्ट कहूची जे आमे जानचंती द टर्म सेंट्रल डगमा. So in central dogma we know that the DNA is responsible for synthesis of RNA. The DNA is responsible for synthesis of RNA, and RNA synthesizes the protein. So this phenomenon, the process of formation of RNA from DNA, is known as transcription, is called as transcription, and the process of formation of protein from RNA is simply called as the translation. Okay, so RNA mainly responsible for translation mechanism, but actual genetic information is located in DNA, which is copied to the RNA, and RNA ultimately synthesizes the phenomenon of the substances known as protein, and phenotypic or whatever the expression is carried out, and this phenomenon is called as central dogma. So before we going to the structure of DNA, all this concept of NCERT page number 95 is very important. जहाँ द्वारा हमर तीनटा क्वेश्चन आसी परिबो. गोटे क्वेश्चन हो जेनेटिक मटेरियल हमें कहा को कहि परिबा, बोथ DNA एंड RNA. सेकंड क्वेश्चन आसी परिबो जे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मानकर जेनेटिक मटेरियल कोन, दैट इज नोन एज DNA. थर्ड क्वेश्चन हे परिबो जे RNA जेनेटिक मटेरियल को मानकर ना सम वायरस मानकर जेनेटिक मटेरियल. फोर्थ क्वेश्चन ऊपर हम रिसर्च करि परिबा जे RNA मोस्टली एक्ट एज, सो द आंसर इज कॉल्ड एज मैसेंजर. ओके, तले एटा हमर प्रथम पेज रो कांसेप्ट. सेकंड आमे जो स्लॉट वीडियो छाड़ीबा, सेकंड रे हमर जो स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल रहबो. तणु करी ए वीडियो परे तमे सब पिला माने सेकंड वीडियो टाको हमर सब्सक्राइब करिवो चैनल टाको, सेकंड वीडियो टाको भी तमे लाइक करिवो. तादर भी जा डाउट अछि तमे मते क्वेश्चन पचारि परिवो. मोबाइल फोन रे मोर नंबर भी दिया जायछि. तणु करी एटा फर्स्ट पार्ट, हम सेकंड पार्ट रे द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड कांसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को हम आलोचना करिबा. ओके, दैट्स आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे.